Okay. So, hope you all have done worksheet of financial market. How many of you have done and submitted? Done, submitted. I'm waiting for everyone. When all of you will submit, then I will discuss. Some of you have submitted, but I want that all of you should submit. Okay. So now let us start the new topic, marketing. Are you all ready? Can you see the screen? Yes, no. Yes, sir. Yes, sir. So the next chapter and the very, very interesting chapter, you have made the project on also on this topic. So it is easy comparatively. Like financial management, it is not very technical, but this is very important chapter. So what I would suggest you all that while we are discussing this particular unit, discuss it in such a way that you need not to revise it. So thorough discussion we will do so that this chapter is prepared here only in the class. So please do not miss any single class. And I'm sure that if you attend all the classes, now all the concept related to this would be very clear in your mind. So please do not miss a single class, number one. Number two, I would be giving you very small homework, very, like 10, 15 minutes only you have to spend on the homework. So please do spend. This is very important. So before I start this unit, let me ask you that what do you mean by marketing? Have you heard this term, marketing? Just before this Diwali Sir, Puja, it refers to activities in your voice is not clear. Just before this Diwali vacation, I asked one of my friend that may I visit your place because nowadays it is Corona time, so we are avoiding it. But I just asked. He said, "Yes, of course you can visit, but right now I am doing marketing for Diwali." You know what he said? I am doing marketing for Diwali. Is this the correct use of this term, marketing? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. But usually people use it. You all agree with me? Many a time you must have heard people when they want to say that we are shopping, then they say we are marketing. Shopping is not marketing, or marketing cannot be shopping. No? Shopping is different. When you are going to market to buy something, then you say I am shopping. No? But you cannot say I was doing marketing. Yeah, I am marketing. Correct? You all agree with me? Yes, sir. Yes. But people use this. No? But this is a wrong use of the term marketing. Correct? Are you all convinced with this much? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now the Yes, question sir. is what is marketing? Can you tell me what is marketing?
It is not Sir, purchasing. maybe promotion of the products we are trying to sell. Promotion of the product, right? This you want to say? Yes, sir. Okay. You are right. I will consider it. But before actually I've come to the term marketing, let us first understand that what is market. Already we have discussed this term market. Is market means a place? Is market compulsorily a place where buyers and sellers are meeting together? This is my question. No, sir. Then what is market? Sir, place It's a where mechanism exchange which of brings the buyers and sellers together. Okay, this is what I said, na? It is not. See, the term market, we should not be restricting the use of this term market to specific place. Market is not only limited to a place, but it includes the entire area where buyers and sellers contact each other. Meeting each other is not necessary. They can contact each other, right? And what the purpose is what? To purchase and to sell what? Commodities, services, and obviously you have to have some price also for this. Correct? Then we will call it market. Like what you are seeing here, what is this? Which market is this? Fish market. Okay. This, what kind of market is this? Street roadside market. markets, street Street market. market, right? And this is what? Online marketing. Online market. No? This is what? Supermarket, like Big Bazaar kind of thing. Then this is also there, no? What we call it? Online shopping, online market. Through mobile also you can. uh, Home delivery is also possible. You have placed the order on mobile and the things will come to you at your place. All these are market. Correct? And market can be divided on like home market, no? International market, national market, domestic market. So in this way also on the basis of geography also we can divide the market. Now let us understand that what are the main features of the market. When we will say that it is a market, these are the characteristics. If it is satisfied, we will call it market. There should be commodity to buy and sell. कुछ तो होना चाहिए जो बिके, कुछ तो हो जो खरीदा जाए. Correct? And then buyers and sellers. Commodity होना चाहिए, buyers and sellers होना चाहिए, फिर उसके लिए वो एरिया या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए. जैसे लैपटॉप हो, मोबाइल हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हो ना, या फिर फिजिकली हम किसी जोग्राफिकल एरिया में जाकर के मार्केट करें, ये भी पॉसिबल है ना. ऑनलाइन मार्केटिंग भी पॉसिबल है, लाइक फ्लिपकार्ट, फेसबुक के थ्रू भी आजकल सामान खरीदे बेचे जा रहे हैं, है ना. फिर आप टीवी पे देखते होगे होम शॉप 18, वो भी एक तरीका है. तो ये होना चाहिए. फिर क्लोज कांटेक्ट होना चाहिए किसके किसके बीच में? बायर और सेलर के बीच में. अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो विल कॉल इट मार्केट. करेक्ट? सर ऑनलाइन शॉपिंग में क्लोज कांटेक्ट कहाँ से? है ना. हम एकदम क्लोज कांटेक्ट का मतलब क्लोज फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता.
हम अपने हिसाब से जब चाहें जैसे चाहें उस प्रोडक्ट को घुमा फिरा करके देख सकते, 360 एंगल पे रोटेट करके देख सकते, उसके फीचर्स पढ़ सकते, रिव्यू देख सकते, फिर उनसे बात कर सकते। कई जगहों पर आप इवन बार्गेनिंग भी कर सकते, पता है कि नहीं? कुछ जगह पे आप बार्गेनिंग भी कर सकते। तो क्लोज कांटेक्ट तो है ही ना, आप केवल एक क्लिक अवे तो हैं। यू वांट टू टॉक, देयर आर पीपल हु विल कॉल यू, हु विल कन्विंस यू। आप विश्वास नहीं होता, आप एक बार policybazaar.com पे जाकर के देख लो, कुछ भी एक पॉलिसी सर्च करके देखो, 10 मिनट के अंदर अंदर में तुम्हारे पास फोन आ जाएगा। देखो क्लोज कांटेक्ट होता है कि नहीं होता है। गेटिंग इट? इट इज नॉट फिजिकल कांटेक्ट, रिमेंबर इट। करेक्ट? Yes, sir. may I move further? तो मार्केट का मतलब क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट समझ आ गया मार्केट का? If yes, then let me ask you a question. You see, you are traveling in flight. आप किसी भी एयरवेज में, इंडिगो में, जेट में हो, क्या वो मार्केट है? वहां बैठे हुए भी आप कुछ, आप जिस जगह बैठे हुए हैं सीट पर, क्या वो भी मार्केट हो सकता है? Traveling in train, traveling in flight, is that market? Yes, sir. आप देखे होगे Yes, sir. फ्लाइट सामने एक मैगजीन रखी होती है, मैगजीन को निकालते हैं, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। फिर एयर होस्टेस से ट्रॉली लेकर के आती हैं और कुछ कुछ आपको बेचते हैं वो लोग, है ना? तो वो भी वहाँ बैठे हुए भी आप मार्केट का पार्ट हो, वहाँ भी बायर हैं, आप बायर हैं, और जो जिस फ्लाइट को आप यूज कर रहे हैं वो सेलर हैं, आपको वहाँ भी वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, नहीं? Yes, sir. अब इस मार्केट को हम कई बेसिस पे बांट सकते हैं, कई बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या क्या हो सकता है वो बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ एरिया आप कर सकते हो, जैसे लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, फिर इंटरनेशनल मार्केट। ये 3 कैटेगरी हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। फिर ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी आप कर सकते हैं, होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट। इन दिस क्लास 11 यू हैव स्टडीड इट, होलसेल एंड रिटेलर्स। बोलो। Yes, sir. फिर आपने इकोनॉमिक्स Yes, में sir. पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन यू डिवाइड द मार्केट, लाइक परफेक्ट मार्केट, मोनोपोली मार्केट, इम्परफेक्ट मार्केट, है ना? मोनोपोली मार्केट माने क्या? Single seller. सेलर एक ही है, बायर्स ढेर Only सारे, one seller. है ना? परफेक्ट मार्केट माने क्या? पढ़ाया है अभी इकोनॉमिक्स में, मार्केट पढ़ चुके हो? से यस नो? Yes, sir. Yes, sir. तो परफेक्ट मार्केट किसको बोलते Yes, हैं? sir. So where large number of sellers and buyers are there. यस। तो ऐसे ही हम और डिवाइड कर सकते हैं, क्या? ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी। लीगैलिटी माने 2 तरह का मार्केट हो सकता है, एक है लीगल मार्केट जिसको हम ओपन मार्केट बोलते हैं, और दूसरा इलीगल तरीके से भी सामान की खरीद बिक्री होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक मार्केट। ब्लैक मार्केटिंग सुना है ना, तो उसको हम यहाँ रखते हैं। करेक्ट? अच्छा, ये जो 5th है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। What is it? On the basis of commodities and service, you can divide the market. So where you are selling the commodities, means the goods, we call it commodity market. Correct? And where you are selling the services are called as
फैक्टर मार्केट। फैक्टर माने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से है। यहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं, इसको हम सेल से ऐसे समझ सकते हैं, CE फिर 2L। व्हाट आर दीज? C स्टैंड्स फॉर कैपिटल, एंटरप्राइज, लेबर। तो ये फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के। अब now this become very important to understand that what is factor market is the market for services, means factors of production which are needed to complete the production process, without which you cannot complete the production process. So in other word, you can say anything used in making a finished product, say capital, land, labor, raw materials, enterprise, all these will come under the categories of factors. Correct? So this is called factor market. Okay. Now, if you have understood that what is market, it is easy now for us to understand that what is marketing. Correct? Marketing is what? It's a process. The word which, when we say process, it means there would be a series of actions involved, series of steps involved. Correct? Through which goods and services, remember it, I'm using both the word, goods and services both. So where services are being purchased and sold, that is also a market, remember it. So these are exchange for producers to consumer. जिसने वो सर्विसेज या गुड प्रोड्यूस की है वहां से कंज्यूमर तक जाएगा। कैसे? इन सच अ वे, इस तरीके से जाएगा दैट मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर नीड्स। इस तरीके से ये एक्सचेंज हो कि कंज्यूमर की जरूरत, कंज्यूमर की जो भी जरूरत है उसको सेटिस्फाई करे। दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। करेक्ट? रिमेंबर इट, इट इज नॉट मेयरली सेल्स। For this I would like to give you the example. See, you may be a good salesperson, that you can even sell a comb to a bald man. Getting it? I'm saying that you can sell a comb, एक कंघा हम बेच सकते हैं, to a bald man, means एक जिसको क्या बोलते हैं, गंजा आदमी, गंजे आदमी को कंघा बेच सकते ना, ये सेल हो सकता है, आप इसको सेल बोल सकते हैं, लेकिन मार्केटिंग नहीं बोल सकते। मार्केटिंग ये कब होगा? जब आप उसकी कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई करें। भाई वो गंजा आदमी है, उसको ऐसा तेल चाहिए जिससे बाल निकल आए, है ना? तो अगर आप उसको एक ऐसा तेल बेचते हैं जिससे बाल निकल सकते, बाल उग सकते हैं, तब तो ये मार्केटिंग है। लेकिन आपने उसको ऐसे कन्विंस कर दिया, कन्विंस माने उसको बेवकूफ बना करके कि ये कंघी ले लो, तुम्हारे खुजली करने के काम आएगा, हाँ, और उसको बेच दिया, वो बेचारा खरीद लिया, तो ये सेल हो सकता है, लेकिन हम इसको मार्केटिंग नहीं बोलेंगे। मार्केटिंग तब होगा जब हम इससे किसी कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई करते हो। इसलिए मार्केटिंग में इट इज इन्वॉल्व डिस्कवर द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कंज्यूमर। अभी थोड़ा और बाद में हम लोग बात करेंगे कि नीड्स क्या होता है और वांट्स क्या होता है ना, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। बट अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट दैट व्हाट इज द नीड ऑफ द कस्टमर, व्हाट दे वांट एक्चुअली, and you should address that, number one. Number two, you have to develop the product and services which would satisfy customers. आप ऐसा नहीं कि आपने जो प्रोडक्ट बना लिया उसको बेच दो, नहीं,
आप ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करो, ऐसी सर्विसेज डेवलप करो जो कंज्यूमर की जरूरत को पूरा करती हो, कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई करती हो, right? And then selection of a distribution channel to reach the product to customer's place. और आपको ऐसा एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाना पड़ेगा जिससे कि वो जो आपने प्रोड्यूस किया है सर्विसेज या गुड्स वो कस्टमर तक पहुंच जाए। ये भी काम मार्केटिंग में आता है, ये भी मार्केटिंग का पार्ट है। फिर डेवलप एंड इम्प्लीमेंट प्रमोशनल स्ट्रैटेजी, जो प्रोडक्ट आपने बनाए हैं उस प्रोडक्ट को कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से हम एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, उसका कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से हम उसको प्रमोट कर सकते हैं, ये काम भी मार्केटिंग का है। तो मार्केटिंग इन्वॉल्व दीज 4 थिंग्स मेनली, करेक्ट? May I move further? If marketing word is clear, at least you have understood that marketing is not purchasing. Number one, marketing is not only selling. If this much is clear, then I would move further. Say yes, no. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now I would be talking, that said that marketing is a process. So what is the process? Process means certain activities involved into it, right? So what are those activities? For example, you have to analyze the needs and wants, the first thing which I said, number one, correct? Then number two, you need to plan the types and model of, suppose you are going to sell a mobile phone. So you have to plan that what type and what kind of model of cell phone, mobile phone you will produce, correct? Then third thing is what? That you have to go for fixing the price of that product. ये कितने का मिलेगा, ये भी तय करना मार्केटिंग का काम है। ये एक लोगों के बारे में बड़ा मिथ रहता है लोगों के मन में कि प्रोडक्ट का प्राइस कौन तय करता है ना? आप उसने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा है ना, वी कैन डिवाइड द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर था ना? बोलो, याद आ रहा है? Yes, sir. तो Yes, sir. प्राइस Yeah. फिक्स कर, प्राइस माने मनी इन्वॉल्व है, तो प्राइस फिक्स करना माने क्या? क्या ये फाइनेंस मैनेजर का काम है? नहीं, ये मार्केटिंग मैनेजर का काम है कि इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना होगा, करेक्ट? सो फिक्सिंग द प्राइस एट विच इट वुड बी सोल्ड। और उसके बाद फिर आता है फोर्थ फंक्शन which is very important, that is what? Selecting the distribution outlets. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कैसे ये पहुंचेगा कंज्यूमर तक? क्या हम डायरेक्ट मार्केटिंग करेंगे इसकी? क्या हम होलसेलर को बेचेंगे, होलसेलर एक ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेगा, ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर इसको एक रिटेलर को बेचेगा, फिर रिटेलर से ये जाएगा कंज्यूमर के पास में। तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स हम यूज करेंगे इसको बेचने के लिए? तो ये मार्केटिंग प्रोसेस के ये 4 मेन पार्ट हैं। पहला क्या? नीड्स एंड वांट्स कंज्यूमर की आइडेंटिफाई करना, फिर किस टाइप का प्रोडक्ट हमको बनाना है, तीसरा प्राइस, और चौथा है किस तरह से हम इसको बेचेंगे, राइट? Yes, sir. ओके, नाउ लेट अस मूव फर्दर। अब इस बेसिस पर मार्केटिंग के जो डेफिनेशन अभी हम लोगों ने डिस्कस करा, उसके बेसिस पे हम इसके फीचर्स के बारे में बात कर सकते हैं। पहला, यू हैव टू फुलफिल द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कंज्यूमर, करेक्ट? सेकेंड थिंग इज व्हाट? दैट यू नीड टू क्रिएट द मार्केट ऑफरिंग। मार्केट ऑफरिंग का मतलब क्या? आप इसे कितने में बेचेंगे,
दिस इज मार्केट ऑफरिंग एंड देन कम्स द कस्टमर वैल्यू. कस्टमर उसको कितना वैल्यू करता है. अभी किसी का एक मेडिसिन से एग्जाम्पल समझ सकते हैं इसको. कोई दवा है, मान लो कैंसर की दवा है, तो कैंसर की दवा 50 रुपए में बिकती हो चाहे 200 रुपए में बिकती हो, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है. बट जिस पेशेंट को इस दवा की जरूरत है उसके लिए ये 50 रुपया 200 रुपया वैल्यू करता है. जिस चीज की आपको जरूरत है, the things which you need, which you want, you will value for that. So we need to identify that what is the customer value for it. Correct? And then we need to develop the exchange mechanism, how it will reach to the consumer from the producer. That is called exchange mechanism. इसमें पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब आएगा. ये 4 इसके फीचर हैं. थोड़ा इसको डिटेल में बात कर लेते हैं. पहला क्या, फुलफिलिंग नीड्स एंड वांट्स. आई वांट समवन टू रीड इट. कैन समवन रीड इट? प्रेरणा, Yes, sir. प्लीज रीड. Fulfilling needs. Fulfilling needs and wants. Marketing is the process of fulfilling the needs and wants of the consumers. All the people have almost the same needs, but their wants happen to be different. रुक जाओ. Example, वेट. देखो, भूख लगना नीड्स है या वांट्स है? Need. need. है ना. इसी तरह से भूख, क्लोथ, हाउस, ये सब क्या है, हमारी नीड्स है. बट मुझे ये नहीं खाना, मुझे यही खाना है, ये हमारी वांट है ना. हमें यहाँ से कहीं दूसरे जगह पे जाना है तो हमारी ट्रैवलिंग नीड है, ट्रांसपोर्ट हमारी नीड है. बट नहीं, हम इसमें मारुति में नहीं बैठेंगे, मुझे तो बेंज कार ही चाहिए, मर्सिडीज ही चाहिए, ये हमारी वांट है. करेक्ट. तो मार्केटर माने जो मार्केट कर रहा है प्रोडक्ट को ना, प्रोड्यूसर जिसको ये बेचना है, जिसको ये मार्केट करना है, उसका काम ये होता है कि इस नीड या वांट्स को कैसे सेटिस्फाई किया जाएगा, इसके बारे में रिसर्च करना. करेक्ट. तो आपकी दो हो सकती है, दोनों जरूरतें, नीड भी हो सकती है और वांट भी हो सकती है. समझ आ रही है मेरी बात? यस, नो? Yes, sir. है ना. ये शादी करना जरूरत है, नीड है. वी वांट टू गेट मैरिड, सो इट इज गुड, इट इज योर नीड, यू हैव टू. बट नहीं, हमें तो अनुष्का शर्मा से ही शादी करना, ये वांट है ना. अब वो विराट कोहली से पूछना पड़ेगा, है कि नहीं. तो जो भी नीड है या वांट है जिस किसी का भी, उसको कैसे सेटिस्फाई किया जाएगा, इसके बारे में रिसर्च करने का काम कौन करता है? मार्केटियर करता है. तो अभी नीड्स और वांट्स क्लियर हो गया? यस, नो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब आती है दूसरी बात, क्या? क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग. अमन, यू रीड दिस.
Creating market offering. The second feature of marketing is creating market offering. It refers to providing complete information about the product and services. Example, providing information about the name of the product and services, types, price, size, center of availability, etc. A good market offer is always prepared, keeping in mind the needs and priorities of the customer. करेक्ट. मार्केट ऑफरिंग क्रिएट करने का मतलब जो प्रोडक्ट हमने नीड्स और वांट्स के बेसिस पर डेवलप किया, वो प्रोडक्ट आप कैसे ले सकते हैं, आप कैसे खरीद सकते हैं ना, इस प्राइस पर, इस जगह पर, ये क्वांटिटी में, ये क्वालिटी में, इस टाइप का, इस प्राइस पर, इस साइज का यहां पर मिल सकता है. इसको कहते हैं मार्केट ऑफरिंग. करेक्ट. यानी कि हमने प्रोडक्ट बनाया, बना करके उसको एक दुकान में रख दिया और उस पे प्राइस का टैग लगा दिया, तो हमने उसकी मार्केट ऑफरिंग क्रिएट कर दी. करेक्ट. नेक्स्ट, हु वुड रीड? यहां पे एक चीज का अंतर समझना जरूरी है, वैल्यू और प्राइस. किसी चीज का प्राइस कुछ भी हो, हम अगर उसको वैल्यू करते हैं तो उसका प्राइस मैटर करता है. बट अगर हम उसका वैल्यू नहीं करते हैं तो चाहे किसी भी प्राइस पे मिल रहा हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है ना. एक छोटी सी कहानी है. एक father or son was sitting in a home. The father financial position was not good. So elephant sailor was passing through. Elephant sailor, he was selling the elephant and he was shouting that in just 1 rupee buy the elephant, in just 1 rupee buy the elephant. So son came, running and informed the father that, father, see, the elephant is being sold just for 1 rupee, please buy it, please buy it. But the financial position of the father was not good. He was not having a single penny in his pocket. So there was no question of 1 rupee. एक पैसा नहीं था उसके पास, तो 1 रुपया तो बहुत बड़ी बात है. तो उस फादर ने कहा, जाने दो, लेट देम गो. जब हाथी 1 लाख का बिकेगा तब खरीदेंगे, अभी 1 रुपये में नहीं खरीदेंगे. जब 1 लाख का हो जाएगा तब खरीदेंगे. बिकॉज हमारे पास में उसका जो भी प्राइस है, अभी हमारा हाथी रखने का क्षमता भी नहीं है, क्योंकि खुद खाने को मुश्किल हो रहा है, तो हाथी लेकर के कहाँ रखेंगे, उसको कैसे खिलाएंगे, भले ही कितना भी सस्ता मिल रहा हो, है ना. तो बहुत लोग वैसे बोलते हैं, जब आप कुछ महंगी गाड़ी खरीद लेते हैं तो लोग बोलते हैं ये हाथी पाल लिए हैं. मतलब वैल्यू फॉर मनी नहीं है उसमें, राइट. तो कस्टमर के लिए उसका वैल्यू कितना है, ये भी हमको देखना पड़ेगा जब हम मार्केटिंग कर रहे होंगे. Correct? Because a seller who does not give attention to the importance that a buyer pays to a product is sure to lag behind in the race of competition. So you have to see that how much is the value for your product to the consumer. Getting it? हम किसको वैल्यू करते हैं ना. आप जैसे यहाँ पे 2 गाड़ियों का एग्जाम्पल है, होंडा सिटी और सियाज का. तो आप किसको वैल्यू करते हो. कुछ लोग ब्रांड लॉयल्टी होती है, उनको लगता है कि नहीं, होंडा नाम ही काफी है, तो वो उसको वैल्यू करते हैं. तो उस पर आप जो भी प्राइस आप रखोगे, पीपल विल बाय. नहीं, देखो मोबाइल फोन 1,50,000 का लोग खरीद रहे हैं, नहीं, आईफोन प्रो मैक्स खरीद रहे हैं ना. तो आप, कुछ लोग 10,000 का भी मोबाइल लेते हैं. तो अपने हिसाब से देखते हैं ना, वो कौन किसको कितना वैल्यू करता है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट का प्राइस तय होता है. तो कस्टमर का वैल्यू क्रिएट करना भी मार्केटियर का काम है.
एंड देन एक्सचेंज मैकेनिज्म, है ना? कैसे हम, क्या डायरेक्ट ये बायर है, ये सेलर है, क्या हम डायरेक्ट डील करेंगे, या हम कौन सा टेक्निक यूज करेंगे जिससे हमारा प्रोडक्ट आसानी से बिक जाए, एडवर्टीजमेंट, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज करेंगे, या हम बीच में इंटरमीडियरीज यूज करेंगे। तो पूरा का पूरा एक मार्केटिंग का जो एक एक्सचेंज सिस्टम है वो डेवलप करना इज कॉल्ड एक्सचेंज मैकेनिज्म। करेक्ट? ये जरा एक बार अपना बुक में भी आपके ये दिया हुआ है, क्या क्या हम मार्केट कर सकते हैं। द आंसर इज देर इज नथिंग विच वी कैन नॉट मार्केट। The answer is there is nothing which we cannot market. We can market the goods, we can market the services, we can market even the ideas like blood donation, say no to drugs, no smoking, clean India, स्वच्छ भारत। ये सब क्या है? ये सब आइडियाज हैं, इसको भी मार्केट किया जा सकता है। पर्सन कैन बी मार्केटेड, प्लेस कैन बी मार्केटेड, है ना? पधारो हमारे देश, राजस्थान का टूरिज्म का ये टैगलाइन है। फिर इवेंट्स कैन बी मार्केटेड, है ना? ये भी आप जानते ही हो, कितना सारा जो आईपीएल वगैरह होता है, ये सब क्या इवेंट ही तो है, उसकी भी देखो मार्केटिंग होती है। तो एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड विच इज अवेलेबल कैन बी मार्केटेड। द राइट थिंग इज दिस। ओके, सो आई वुड जस्ट से bye bye here. Okay, anything till now you want to ask? Got the concept of marketing, features of marketing? Understood it? Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. So thanks to all of you. You can Yes. leave now. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.